कानों की मैल निकलवाने के लिए 17.5 साल का ये लड़का श्री बालाजी हॉस्पिटल में आया था, लेकिन हालात देखिए जनाब, इनके कानों के पर्दे में सुराख हो गया। अब परिवार कह रहा है कि बेटे का आर्मी में सिलेक्शन होना था, लेकिन अब होगा तो होगा कैसे। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਲ ਕਢਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਵੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਕਰਤੀ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਜਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ कहता तुम्हारे पर्दे में सुराख है जी। दोनों पर्दों में सुराख है। तो हमने पूछा भी ये कैसे हुआ, तो इन्होंने सानू कहा असी किहड़ा कीते आ भी सानू हरख के बोले जी। ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ठीक है। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਸਰਾਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟ ਜਾਂ CCTV ਮੇਰੇ ਦੀ ਉਹ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲਿਆਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੁਸੀਂ। अच्छा, ये बात डॉक्टर साहब ने कही है। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਤ ਕਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਈ ਆ 400 ਹੁਣ ਦੇ ਕਿਹਾ, 700 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਸੀ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੱਕਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਚ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ। नहीं भाई साहब, कहाँ से आप हैं, बेटे का क्या नाम है, कैसे यहाँ तक पहुँचे थे, कब आए थे, सारी बात बताओ जी। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦੂ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ। ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗਾ। तो यहाँ कैसे पहुँचे थे आप। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੈਲ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ठीक है। ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਭਾਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਲ ਕੱਢੀ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਗਿੱਲਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਂਗਲ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਨ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂ ਜਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਮੈਲ ਕਢਵਾਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪੜਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਤੋਰਤਾ ਇੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਰੇਸ਼ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਫਿੱਟ ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MH ਪਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਲ ਕਢਵਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਕੰਨਾਂ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਚੀਰਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾਗਾ। ਚੀਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਲੈਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं। ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਇਸੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। हाँ बेटा, महसूस कैसे आपको हुआ कि आपके कान में कुछ। मेरे कान में से पीला सा पानी निकल रहा सर। अच्छा। पीला सा पानी निकल रहा। मैं जहाँ चेक कराने आया, फिर इन्होंने दूरबीन की मदद से चेक किया तो कान में पर्दे में छेद था जी। इसलिए हमने डॉक्टर से पूछा भी ये कैसे हुआ, तो डॉक्टर बोलने लगे हमने किया ये ऐसे हुआ, हमें पूठा सीधा बोले। तो आपने कहीं और से भी चेक करवाया है सुराख का, या खाली इसी डॉक्टर ने आपको बताया कि। चेक कराया और लाल सही। जिक तो भी करवा के लाए, वो भी कहना सराख है। उधर से भी करवा के आए हैं, वो भी कहना सराख है। तो उन्होंने कुछ बताया कि कोई 10-15 दिन में कुछ सोल्यूशन सा निकलता है। 10-15 दिन में 10-15 दिन में कुछ नहीं हो सकता। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ ਪੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੂਗਾ। इसने 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਅੰਬਾਲੇ। फिर वो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा जो। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਰਮੀ 'ਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ लेंदे को नहीं आर्मी। मामला तो कुछ भी नहीं है जी, मामला है गलतफहमी का। ये मरीज मेरे पास आया है, इसने 24 जुलाई को कभी हमें दिखाया होगा, इसके कान में मैल था। ये कहता है उसके बाद मैं 26 या 27 जुलाई को भर्ती पे जाने से पहले साफ करा के गया हूँ। ये उसके बाद आज आया है भर्ती में, उन्होंने इसे कान के पर्दे में छेद था। जो मैंने देखा कान के पर्दे में, मैंने इसे बताया कान के पर्दे में छेद है। तो कहता जी इस पर चेपी लगा दो। मैं कहा चेपी चुप्पी नहीं लगती होती, ऑपरेशन ही होगा। तो कहता जी कैसे करके 10 दिन में फिट करो। मैं कहा वो हो नहीं सकता। फिर इसने मुझसे पूछा छेद कैसे हुआ, आपने पहले साफ किया था, आपने देखा होगा। मैंने कहा तब छेद होता तो वो बता देते भाई। बाद में हो सकता है कान में तीला मारा हो, कोई तेरे को जुकाम हो, छेद होने के 100 कारण हो सकता है। नहीं जी ए भी नहीं होया, ए भी नहीं होया। लास्ट वो मैंने बड़ा इरीटेट कर रहा सी। मैं कहा कि भाई तू ये कहना चाहता कि मैंने फाड़ा है। कहता जी तुसी मान लिया, तुसी फाड़िया, हुण मैं पंचायत करनी है। मैं कहा तेरे से बात करने का कोई अर्थ नहीं है। नहीं जी तुसी मन्निया है, तुसी तो कायम रहना। और मैं क्या तू यह कहना चाहना है कि मैं फाड़िया। मतलब ये जो कोई बहुत ज़्यादा इरीटेट आप कही देंगे कि भाई तू कह रहा मैंने की है, अगर आपने मान लिया आपने की है, फिर इस ऐसे आदमी से तो मैं क्या करूँ। नहीं, एक्चुअली में इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है डॉक्टर साहब आपसे। पता नहीं, मेरे से एक्सपेक्टेशन थी मैं इसको 10 दिन में ठीक कर दूँ। इसके लिए मैंने मना कर दिया, जो मैं कर नहीं सकता हूँ मैं कैसे यहाँ भर लूँ।
ये अगर मैं हाँ भर देता तो मुझे पैसे भी देने को तैयार था, पर मैं जो कर नहीं सकता वो कैसे हाँ भर लूँ जी। मेरे हिसाब से मरीज डिसअपॉइंटेड है कि उसके बच्चे का सिलेक्शन हो गया और वो किसी कारण से रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, और वो ठीक नहीं हो सकता, डॉक्टर साहब ने हाथ खड़े कर दिए। ये सारी है उसकी डिसअपॉइंटमेंट है, वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट में बिना बात के उसको जो मिल रहा है उससे, जैसे कुत्ता नहीं, मतलब किसी में वड्डन वाली गल है, मैं वड्डना है। आप मुझसे 10 बार एक चीज़ पूछो, मैं लास्ट में यही कहूँगा ना यार हाँ यार मैंने, तू कहना चाहता मैंने की है, तो कहता जी आपने मान लिया, तो आपने मान ही लिया, उधर इसका बताओ क्या सोल्यूशन। अगर इसका उस दिन पर्दा फटा होता साफ करते, इसके दर्द हुआ होता, कोई रोया होता, घर जाके बताया होता, लड़ना तो ऐसे कर लो। हो सकता 2 बच्चे लड़के आपस में लड़े हो, थप्पड़बाजी हुई हो, कि आप हमें थोड़ा सच बता रहे हैं। 20 दिन में क्या हुआ है कौन कह सकता है जी, 20 दिन हो गए उस बात को।